Okay. Good morning, student. Myself, Sandeep sir from Mahi Municipal Secondary School, and today we are going to learn a very interesting topic 1.5 The Necklace. The Necklace was written by K. D. Manipesent. So, today we are going to learn the second part of this topic. आज जो हमें द नेकलेस का जो है सेकंड पार्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने पहला पार्ट इसका पढ़ाई होगा, सो द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट द बोथ पार्ट आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लर्निंग it is. So before we start the second part, so let's know the some introduction from the part 1. So the necklace introduction to the lesson part 1. तो हम क्या करेंगे, जैसे सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था और किस बारे में उसमें बताया गया था, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे. सो लेट्स सी. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ सेल्फिश लेडी नेम मैथिल्डी. शी इज अनसेटिस्फाइड विथ हर लाइफ as she want a rich husband, but because she belong to a family of clerk and her family is unable to giving dowry, she is married to a clerk. So as you know that in the first part, Mathilde is very charming and very beautiful woman. She wanted to marry with a rich person. She want to go in the rich family, but unfortunately she belonged to a poor family. That's why she was going to marry with a middle class family and with a clerk. So she was always unsatisfied in her life because she wanted a more thing, but she didn't get it. Okay. One day, what happened? The both husband and wife are invited to party at a ministry house. तो जैसे कि आपको पता होगा कि पहले पार्ट में हमें बताया गया कि दोनों हस्बैंड और वाइफ को एक मिनिस्ट्री के होम में उन्हें पार्टी के लिए आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है. But as you know that Matilda was very unhappy because she don't have much good clothes and jewels to wear. Okay, so but Matilda does not have the good clothes and jewels to wear at such a party. लेकिन उसके पास पार्टी में पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे और ज्वेल्स भी नहीं थे. एंड दैट्स व्हाई हर हस्बैंड सजेस्ट हर टू बाय अ ड्रेस एंड आस्क एन ओल्ड फ्रेंड फॉर ज्वेलरी. सो उनके हस्बैंड क्या करते हैं कि लॉयल से कि उसके लिए एक ड्रेस खरीद के देते हैं. जो उन्होंने बचाए हुए पैसे थे गन खरीदने के लिए, उन्होंने जो बचाए थे पैसे, उन पैसे से उसको ड्रेस खरीद के देते हैं और ज्वेलरी के बोलते हैं कि यू कैन आस्क योर फ्रेंड. सो she then borrow a necklace from her friend and goes to a party. So what she did? She borrow a necklace from her friend. जैसे कि आपको पता है कि उस कैरेक्टर में एक मैडम जेनी फॉरेस्टियर जो उसकी फ्रेंड रहती है, and she is also very charming and beautiful, but not as like Mathilde. So Mathilde borrow a necklace from जेनी फॉरेस्टियर. वो क्या करती है, जेनी फॉरेस्टियर से एक नेकलेस बोरो करती है. बोरो का मतलब होता है कि उधार लेना या उसना लेना. Then goes to party and where she enjoy the very much dancing, laughing, doing the each and everything and enjoy the whole night. So when she returned to the home and what happened next, it is in the tale is in the part second. So what happened next proved to be a lesson from the unhappy lady. फिर उसके बाद क्या होता है और उसके लाइफ में क्या बदलाव आता है, इसके बारे में पार्ट सेकंड में चर्चा की गई है. So this is introduction of part 1. So let us see the some character in this lesson. The first is Madam Mathilde Loyalties. जो हमारे कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो है मैडम मैथिल्डी. सेकंड है मैडम जेनी फॉरेस्टियर जिसके तरफ से वो जो हार है वो बोरो करती है. देन है कैबिनेट ऑफिसर जिसके इसमें वो उनके हस्बैंड वो काम करके उनको नोट्स देते हैं, कुछ उनके डेप्स लेते हैं, बहुत सारे. देन मॉन्सियर लॉयल्सीज मीन्स इट इज कॉल्ड, मैंसियर का मतलब होता है कि श्रीमान, लॉयल्सी जो उसके मैडम मैथिल्डी के हस्बैंड है. देन जेलर. सो दिस ऑल lesson or all is set in the Paris, France in late 18th century. So let's start with the part second. तो हम पार्ट सेकंड से अभी स्टार्ट करते हैं. So please open the page number 28. Okay. Part second. They look in the fold of her dress, in the fold of her cloth, in her pocket, everywhere. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट में हमें बताया गया कि वो पार्टी के लिए जाते हैं. Then when they return at a late night from the party, what they found that? They found that there is no necklace on her neck. कि उसके गर्दन पे जो नेकलेस है वो बिल्कुल वहां पे नहीं रहता है. So they
both are look very worried. वो बहुत चिंतित हो जाते हैं. So they look in the fold of her dress. वो अपने ड्रेस में उसे ढूंढती है कि शायद ये ड्रेस में कहीं अटक गया होगा. In the fold of her cloak. क्लो का मतलब होता है कि जैसे हम उसको बोलते हैं फ्रॉक या कुछ ढका हुआ रहता है ऐसा पॉकेट, इस प्रकार से. In her pockets everywhere means they were searching their necklace each and every possible where, but they could not find it. But उन्हें वो नेकलेस नहीं मिलता है. So are you sure you still had it on when you left the hall? He asked. Then उसके जो हस्बैंड है लॉयल सी, वो से पूछते हैं कि आर यू श्योर इट हैड इन ऑन यू व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, कि तुमने जब हॉल छोड़ा था, हमने जब पार्टी से बाहर निकले तो ये तुम्हारे गले में था, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? यस, आई टच इट इन द हॉल एट मिनिस्ट्री. सो व्हाट डिड शी रिप्लाई? शी रिप्लाई दैट यस, कि वो मेरे पास था और मैंने इसे हॉल में टच भी किया था. बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल. इट मस्ट बी इन द कैब. तो जैसे वो पार्टी से वो रिटर्न आते हैं तो आपको पता है वो कैब करते हैं, वो गाड़ी से वहां पे टैक्सी से घर में आते हैं. सो उसके हस्बैंड कहते हैं इफ यू लॉस इन द स्ट्रीट, अगर हम इसको रास्ते पे खो देते, देन वी मस्ट लिसन द साउंड ऑफ इट, हमें इसका आवाज तो जरूर सुनाई आता, बट ऐसा आवाज हमें कभी सुनाई नहीं आया. इट्स मीन दैट इट मस्ट बी इन द कैब. तो मुझे लगता है कि ये जो हार है हमारा कैब में रह गया है. कैब मीन्स टैक्सी. यस, दैट्स प्रोबेबली इट. तो प्रोबेबली का मतलब होता है कि शायद, कि ऐसा शायद हो सकता है. डिड यू टेक हिज नंबर, क्या तुमने उसका नंबर लिया? तो ये मैडम पूछती है लॉयल से, क्या तुमने उसका नंबर लिया? तो देन व्हाट ही रिप्लाई? नो. दे स्टार्ट एट ईच अदर एंड स्टन. स्टोन का मतलब होता है कि हैरान भरा, यानी वो स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो नेकलेस है जो मैडम फॉरेस्ट से उन्हें लाया था वो बहुत महंगा रहता है और उन्होंने वो खो दिया है. एंड दैट्स व्हाई दे लुकिंग वेरी वरीड. दे स्टार्ट एट ईच अदर स्टैंड एट लॉस. लॉयल फिश पुट हिज क्लॉथ ऑन अगेन. आई एम गोइंग बैक, ही सेड. ओवर द होल रूट वी वॉक एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट. और वो कहते हैं कि मैं अभी वापस जाता हूँ और जिस रूट पे हम स्टार्टिंग से चलते आए हॉल से लेके यहाँ तक, सारे रूट पे मैं चेक करता हूँ. इट विल बी पॉसिबल दैट आई कुड फाइंड इट. तो ऐसा हो सकता है कि शायद मुझे वो मिल जाए. सो ही लेफ्ट. तो फिर वो अपना घर छोड़ देते हैं और अपना कोट पहन के फिर से वो हार ढूंढने के लिए निकल जाते हैं. शी रिमेन इन हर बॉल ड्रेस ऑल नाइट, हर माइंड ब्लैंक, एंड इट इज ऑब्वियसली because as you know that they both here belong to a common family. They couldn't have much money. उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे. And what they think that they thought that they lost their necklace. तो ऐसा उन्हें लगता है कि वो नेकलेस उनके हाथ से खो गया है. And that's why मैथेल्डी remain blank. अब उसका जो दिमाग है पूरा खाली हो जाता है, कोई काम नहीं करता है. Her husband returned at about 7 o'clock. They had found nothing. जैसे आपको बताया कि वो लेट रात पार्टी से आते हैं, उसके बाद उनके जो हस्बैंड होते हैं दे रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock. वो मॉर्निंग की सुबह घर में आते हैं और सारा रात भर वो हार को ढूंढते रहते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड फाउंड नथिंग. लेकिन उन्हें वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है. सो दे डिसाइडेड टू वेंट पुलिस. सो ही वेंट टू द पुलिस, टू द न्यूज़पेपर, टू ऑफिसर अ रिवार्ड, टू अ कैब कंपनीज, एवरीवेयर इन द टाइनीस्ट ग्लिमर ऑफ होप लेड हिम. तो फिर उनके हस्बैंड क्या करते हैं कि वो वहाँ पुलिस में जाते हैं, न्यूज़पेपर से ऑफिसर से मिलते हैं और वहाँ पे न्यूज़पेपर से बात करते हैं कि किसी को अगर वो नेकलेस मिल जाए तो प्लीज रिटर्न इट एंड दे विल गेट द रिवार्ड, कि उन्हें बख्शिश भी दिया जाएगा. दे आल्सो कॉन्टेक्ट विद द कैब कंपनीज, क्योंकि दे थॉट दैट द नेकलेस मस्ट बी लॉस्ट इन द कैब. उन्हें ऐसा लगता है कि जो नेकलेस है वो कैब में खो गया है. दैट्स व्हाई दे आल्सो कॉन्टेक्ट विद द कैब कंपनीज. एवरीवेयर द टाइनीस्ट ग्लिमर ऑफ होप लेड हिम. अब जब इतना महंगा नेकलेस उनके हाथ से खो गया है तो जो सारे जो पॉसिबल वे रहते थे वो मिलने के, हार मिलने के, वो सब जगह वो सर्च करते हैं, सब जगह हो जाते हैं. सो एवरीवेयर इन द टाइनीस्ट ग्लिमर ऑफ होप लेड हिम, यानी जहां आशा की थोड़ी झलक भी उन्हें मिल जाए वो सारी जगह वो चेक करते हैं कि वो शायद वो हार उन्हें मिल जाए. सो ओके, लेट्स सी. शी वेटेड ऑल डे इन डिस्पेयर एट दिस फेटफुल डिजास्टर. यानी डिजास्टर का मतलब होता है कि फेटफुल का मतलब होता है निराश होना, घबराना, और डिजास्टर का मतलब होता है कि
जैसे एकदम नुकसान हो जाना। सो शी वेटेड ऑल डे, वो सारा दिन वो इंतजार करती रहती है कि वो उन्हें हार मिल जाए, कोई उन्हें वापस कर दे या क्या कंपनी से कोई कॉल आ जाए। इन डिस्पेयर एट दिस फेटफुल डिजास्टर, और जो उनसे नुकसान हुआ है उसके इसमें वो खोए रहते हैं और बड़े निराश रहते हैं। सो लॉयल सी रिटर्न इन द इवनिंग, और शाम को जो उनके हस्बैंड होते हैं लॉयल सी, वो रिटर्न आते हैं इन द इवनिंग। हेलो पेल फिगर ही हैड फाउंड नथिंग, और वो भी बड़े निराश रहते हैं। हेलो का मतलब होता है कि वो बड़े खुशी रहते हैं और बड़े निराश रहते हैं, और पेल फिगर का मतलब होता है कि उनका चेहरा भी बड़ा मुरझाया रहता है। एंड व्हाई दिस इज? बिकॉज ही हैड फाउंड नथिंग। They both were searching for the necklace, but they couldn't found it, and that's why the both were the pale figure and hello. You must write to your friend, he said. अब जब उन्हें लगता है कि ये जो हार है अब ये मिलने वाला नहीं है, इसकी संभावना बिल्कुल ही नहीं है, तो वो अपने वाइफ को सजेस्ट करते हैं कि यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, कि शायद अभी तुम्हें अपने फ्रेंड को, मतलब मैडम फॉरेस्टर को कुछ लिखना पड़ेगा। एंड व्हाट? टेल हर यू हैव ब्रोकन इन द क्लैप्स of her necklace and you are having it mended. It will give us time to look more, some more. So उन्हें क्या कहते हैं? So tell your friend that the the claps were broken. जो क्लैप्स का मतलब क्या होता है? जैसा वो हार हम पीछे से लगाते हैं, जो उसकी कड़ी रहती है, तो अपने फ्रेंड को तुम कहो कि इसकी जो कड़ी है वो वहां से टूट चुकी है। एंड वी आर हैविंग इट मेंडेड, और हमने उसे क्या किया? बनाने के लिए ज्वेलरी से अपने दिया है। सो इट विल गिव अस सम टाइम टू लुक सम मोर, और इससे क्या होगा कि हमें कुछ समय मिल जाएगा ताकि हम हार को और ज्यादा सर्च कर सके, कई कंपनी में और जा सके, और पॉलिटिशियन जा सके और देख सके कि हार मिलता है कि नहीं। दे विल गेट द मोर टाइम। ओके, सी रोट एज इज डिटेक्ट, वो जैसा बताते हैं, जैसा वो ऑर्डर करते हैं, वो उसी प्रकार से अपने फ्रेंड को वो मैडम फॉरेस्टर को लिख देती है। एट द एंड ऑफ 1 वीक, अब पूरा एक हफ्ता चला जाता है। दे हैड लॉस्ट ऑल होप, अब एक हफ्ते तक उनका कोई नेकलेस वापस नहीं आता है, किसी से कॉल नहीं आता है, और कोई कंपनी से भी कॉल नहीं आता है, पॉलिटिशियन से भी कोई जवाब नहीं आता है। सो द 1 वीक हैड बीन पास, तो एक हफ्ता ऐसे ही चले जाता है। एंड दैट्स व्हाई दे हैड लॉस्ट ऑल होप, अब वो अपनी पूरी जो आशा है वो खो देते हैं। सो लॉयल्टी हु सडनली लुक एज डिक्लेयर वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल्स। अब देखो यहाँ पे एक दिया है वर्ड द लॉयल सी हु सडनली लुक एज। एज का मतलब होता है कि लॉयल सी अब थोड़े निराश दिखने लगे, थोड़े बूढ़े दिखने लगे। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ बर्डन, बिकॉज ऑफ वरीड, बिकॉज द बोथ वे आर वरीड फॉर द नेकलेस। वो नेकलेस को ढूंढते रहते हैं और नेकलेस मिलता नहीं है। और जैसे आपको पता है कि जैसे हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, देन वी लॉस अवर ग्लोनेस from our face. So same thing happened with the loyalties who suddenly look age and declare we must consider how to replace the jewels. अभी एक हफ्ते तक अगर उनका जो नेकलेस नहीं मिला, फिर वो ऐसा कंसिडर करते हैं कि अभी शायद हमें नेकलेस वापस ना मिल पाए। सो वी शुड थिंक हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल्स, अभी हम उसकी ज्वेलरी को कैसे वापस करेंगे, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। सो एंड सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर looking for the necklace like the other one, consulting their memories, both sick with the grief and anguish. अब देखो क्या करते हैं। सो दे वेंट फ्रॉम जेलर टू जेलर, वो एक दुकान से ज्वेलरी से लेके दूसरी दुकान तक जाता है। जैसे आपको चित्र में देखो यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक ज्वेलर से लेके दूसरे आ जाता है। वाई? बिकॉज दे वांटेड द सेम नेकलेस, एग्जैक्टली सेम नेकलेस फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर के पास जैसा था वही सेम नेकलेस उनको चाहिए था। दैट्स व्हाई दे सर्चिंग फ्रॉम जेलर टू जेलर looking for the necklace like the उसके जैसे मिलने के लिए वो यहाँ से वहां भटक रहे थे। कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, वो याद करने की कोशिश कर रहे थे कि वो नेकलेस कैसा था, कैसा लुक उसका था, और उसी प्रकार से शायद मिल सके। बोथ द सिक विद ग्रीफ एंड एंग्यूअस, सिक का मतलब होता है कि अस्वस्थ, एकदम वो निराश हो जाते हैं। ग्रीफ का मतलब होता है कि अनहैप्पी, एंड दे फील द वेरी इमोशनल, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बड़े दुख हो जाते हैं, और दुख में वो सारा काम करते रहते हैं, यहाँ से वहां वो जाते रहते हैं। बिकॉज द कंडीशन हैज बीन चेंज, अभी उनकी जो कंडीशन है वो चेंज हो चुकी है। इन द शॉप एट द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड which seemed to be exactly what they were looking for.
अब देखो इतने हफ्ते के परिश्रम के बाद उन्हें फैंसी रॉयल एक ज्वेलरी शॉप है, उनमें वो सेम दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि चेन, वही डायमंड से बना हुआ चेन से सेम टू बी एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। और जैसा वो नेकलेस ढूंढ रहे थे वैसा नेकलेस उन्हें पैलेस रॉयल में मिल जाता है। इट वॉज वर्थ द 40,000 फ्रांस। अब जो उसकी कीमत है वो 40,000 फ्रांस रहते हैं। अब ये फ्रांस क्या है, जैसे हम इंडिया इसमें हम रुपीज की बात करते हैं, हम पैसों को रुपीज में कंसीडर करते हैं, वैसे फ्रांस में वहाँ फ्रांस बोला जाता है। सो इसकी जो कीमत थी प्राइस उस हार की वो थी 40,000 फ्रांस। दे कुड हैव इट फॉर द 36,000। और वो वहां से वो बार्गेनिंग करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम इसे 36,000 में खरीद सकते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे दोनों की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। ऑलरेडी दे बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली में अगर नेकलेस खो जाए, बड़ी चीज का कुछ देना पड़े पैसा, सो इट विल बी वेरी ग्रीफ एंड एंग्यूअस। सो ऑन नेक्स्ट पेज, सो दे बेग द जेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days। अब वो वहाँ जेलर की दुकान से एक उनको विनती करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि यू शुड नॉट बी सेल इट, तुम इसको बेचो मत बिफोर द ट्रेड, यानी 3 दिन के पहले इसको बेचो मत। एंड दे मेड एन अरेंजमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर द 34,000 फ्रांस इफ द अदर नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ फरवरी। अब वहां से वो एक एग्रीमेंट ऐसा करते हैं ज्वेलर शॉप से कि आप इस ज्वेलरी को जो है उसको बेचो मत, हम इसको खरीद रहे। एंड आफ्टर द परचेसिंग इफ यू फाउंड अ रियल नेकलेस what they had lost and they will be return it to the इन शॉप। वो कहते हैं कि अगर हम फरवरी तक हमें एंड तक इसका नेकलेस, हमें ओरिजिनल नेकलेस अगर हम मिल जाता है तो हम आपका नेकलेस को वापस आपको कर देंगे 34,000 फ्रांस में। तो ऐसा वो एग्रीमेंट उनके साथ कर लेते हैं। लॉयल्टी हैड 18,000 फ्रांस विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। अब मिस्टर लॉयल्टीज जो उसके हस्बैंड है उनके पास में 18,000 फ्रांस रहते हैं जो उनके पिताजी ने उनके लिए छोड़ के गए थे। ही वुड बोरो द रेस्ट, और बाकी के जो पैसे हैं उनको बारो करना पड़ेगा, कहीं से लेना पड़ेगा। सो एंड ही डिड बोरो, और वो उसने लेते हैं। सो ही गिव द नोट्स मेड द रीनियस एग्रीमेंट। ही गिव द नोट्स का मतलब होता है कि जैसे वो कहीं दुकान में जाना, हम किसी साहूकार के पास जाते हैं तो बहुत सारे लिखावट के हम लिख के देते हैं, उस प्रकार से मेड द रीनियस एग्रीमेंट। रीनियस का मतलब होता है कि विनाशकारी। तो बहुत जो ऐसे एग्रीमेंट है, एज यू नो दैट द मनी लेंडर एग्रीमेंट वाज वेरी ड्रेडफुल। मनी लेंडर के जो एग्रीमेंट रहते हैं, साहूकार के जो एग्रीमेंट रहते हैं वो बहुत भयंकर रहते हैं। और ऐसे वो एग्रीमेंट उनके साथ उन्हें करना पड़ता है बिकॉज दे वांटेड मनी, क्योंकि उन्हें पैसे की बहुत जरूरत थी। ही गिव नोट्स मेड रीनियस एग्रीमेंट डील विद एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर। मनी लेंडर का मतलब होता है कि साहूकार, हर प्रकार के साहूकार से वो सौदा करते हैं कि कितना पैसा मिलेगा, कितने रेंट में मिलेगा, इंटरेस्ट में मिलेगा, सारी चीजें। दे वेंट Then he went to get new necklace and laid down on the jewelry counter 36,000 फ्रांस। अब जब पूरा उनको पैसा मिल जाता है, उनके 18,000 निकाल के जो पैसे लगते हैं वो पूरा मिलने के बाद नेकलेस शॉप में जाते हैं और वहां पे उनको 36,000 में सेम नेकलेस वो वहां से खरीद लेते हैं। When Madam Loyalty took the necklace back, Madam Forestier said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." जब मैडम लॉयल्टी उसको नेकलेस वापस करते हैं मैडम फॉरेस्टियर को, व्हाट शी रिप्लाई इन वेरी कोल्डली, बड़े शांत दिमाग से वो कहती है, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, तुम्हें शायद इसको जल्दी वापस करना था, बिकॉज आई माइट हैव नीडेड इट, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी। उसके बारे में वो कहती है। सो फ्रॉम देन ऑन, अब देखो नेकलेस मिल गया है, नेकलेस वो ज्वेलरी शॉप से खरीद लेते हैं 36 में 36,000 फ्रांस में, और वो नेकलेस उनको मैडम फॉरेस्टर को मिल जाता है। अब इसके बाद व्हाट हैपन इन देयर लाइफ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। द फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद मैडम लॉयल्टी न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर। अब मैडम लॉयल्टी उसको एक भयंकर लाइफ, पुअर लोगों की लाइफ यानी गरीब लोगों की लाइफ उसको जीना पड़ता है। सो बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली, लेकिन वो अपना पार्ट जो है बहुत अच्छी तरह से निभाती है, बहुत सारा काम करती है, मेहनत करती है। सो व्हाट इट डिड, द ड्रेडफुल डे मस्ट बी फेड,
शी थिंक दैट कि जो ये भयंकर डेप्ट है, जो कर्जा है, इसको पेड करना ही पड़ेगा एंड वी कैन डू एनीथिंग फॉर पेड द डेप। और जो कर्जा है उसको पेड करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सो शी डिसाइड शी वुड पे इट। दे डिसमिस देयर मेड। मेड का मतलब होता है कि नौकरानी। वो अपने घर में जो नौकरानी है उसको भी डिसमिस कर देते हैं, उसको भी काम से निकाल देते हैं। दे चेंज देयर लॉजिंग। अब वो जहाँ पे आलिशान वो जो घर में रहते थे, मिडिल क्लास फैमिली थी लेकिन थोड़े अच्छे घर में रहते थे, सो चेंज देयर लॉजिंग, वो अपना घर जो है वहां से बदल लेते हैं। एंड वेयर दे शिप, दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ। गैरेट का मतलब होता है कि किसी एटिक यानी किसी छत के नीचे वो किसी रूफ छत के नीचे वो अपना जो पूरा है घर का लॉजिंग वो वहां बना लेते, वहां रहने के लिए चले जाते हैं। सो इन दिस पेज वी हैव सीन दैट द चेंज इन द लाइफ ऑफ मैडम लॉयल्सीज बिकॉज ऑफ द नेकलेस। एक नेकलेस के कारण मैडम लॉयल्सीज के लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो ऑन नेक्स्ट पेज, सी came to know the drudgery of housework, the odious labor of the kitchen. Now it is a real condition of their life now. अब उनके लाइफ में कैसी कंडीशन आती है इसके बारे में ये बताया गया है। She came to know drudgery of the house. drudgery का मतलब होता है कि हार्ड वर्क, जो घर में लेबर जैसे काम करते हैं, अब घर में कैसा काम करना पड़ता है इसके बारे में उसे अभी पता चल गया था। द odious labor of the kitchen. odious का जैसे मतलब होता है कि घिनौना काम, जैसे हेटफुल, हम जिस काम को बहुत घृणा करते हैं वैसा उसे काम वो किचन में अभी करना पड़ता था। शी वॉश द डिशेज। अभी उसके खुद अपने जैसे उसने नौकरानी रखी थी, अभी उसको नौकरानी को निकाल दिया था। सो शी वॉश द डिशेज, उसे वो बर्तन भी धोना पड़ता था। द डर्टी लिनेन। लिनेन का मतलब होता है कि जैसे चादर वगैरह घर के रहते बहुत पड़ी हुई धूल खाई हुई, उसको धोना पड़ता था। शी कैरीड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग and carried up the water, stopping at the east landing to catch her breath and dress like a commoner. So it is the condition of the Madam Loyalty after losing the necklace. नेकलेस खोने के बाद मैडम लॉयल्सी की कंडीशन क्या होती है इसको इस पैराग्राफ में वर्णन किया गया है। शी कैरीड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग। हर सुबह उसको जो गार्बेज है मतलब जो कूड़ा कचरा है वो मॉर्निंग को स्ट्रीट के उधर वहां लेके जाना पड़ता था। कैरीड अप वाटर स्टॉपिंग एट ईस्ट लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ। यानी उसको पानी भी वहां ऊपर, जैसे मैंने बताया कि वो एटिक में रहने गए थे, जैसे ऊपर रहने गए थे रूफ पे, तो वहां से उन्हें पानी लेके जाना पड़ता था। एंड दे स्टॉपिंग एट ईस्ट लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ ड्रेस लाइक अ कॉमनर। और उसको हर पायरी पे रुकना पड़ता था सांस लेने के लिए। एंड शी ड्रेस लाइक अ कॉमनर। अब उसको जो ड्रेस है वो पहनावट भी बदल गई थी। जैसे हम चित्र में दिख रहे हैं कि वहां पे जो पहले है उसका ड्रेस अलग इसका था, लेकिन बाद में उसके लाइफ में बड़ा चेंजेस आ जाता है। एंड शी ड्रेस लाइक अ कॉमनर। शी हैड टू बार्गेन एट मार्केट, quarrel एंड फेस इंसल्ट ऑन एवरी माइसरेबल सो। सो का मतलब होता है कि बहुत कम पैसे के लिए, जैसे हमारे यहाँ कुछ सिक्के होते हैं, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए की सिक्का, वैसा कुछ फ्रांस में है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सो शी हैड टू बार्गेन एट मार्केट। एज यू नो दैट इफ यू हैव टू वेरी लो मनी, आपके पास अगर बहुत कम पैसा रहता है, देन यू शुड हैव टू बार्गेनिंग फ्रॉम द ईच एंड एवरी थिंग्स। तो हम मार्केट में क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजों के लिए बार्गेनिंग करते हैं, उसकी प्राइस कम करने की कोशिश करते हैं। द सेम थिंग हैपन विद द मैडम लॉयल्सीज। शी हैड टू बार्गेन एट मार्केट्स, quarrel and face the insult or the every miserable so। तो उसको हर मार्केट के लिए, मार्केट में जाने के बाद हर चीज लेने के लिए कॉरल करना पड़ता था, झगड़ा करना पड़ता था, और छोटी छोटी चीज को लेकर उसका इंसल्ट भी हो जाता था। ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, रिन्यू द अदर, गेट मोर टाइम। वो क्या करते थे, हर महीना अपना लोन पे करते थे और कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलने के लिए कुछ नया लोन लेते थे। रिन्यू द अदर्स, गेट मोर टाइम, ज्यादा समय मिलने के लिए एक छोटा सा लोन भी वो ले लेते थे। सो her husband worked extra every evening doing the accounts of pressman and often। अब इसका जो प्रभाव है मैडम लॉयल्सी के ऊपर ही नहीं तो उनके हस्बैंड के ऊपर भी पड़ा था। एंड दे हैव टू पे देयर डेट। अब उनको अपना ब्याज भी उनको चुकाना था। सो दे शुड हैव डू द एक्स्ट्रा वर्क।
हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा एवरी इवनिंग डूइंग द अकाउंट्स ऑफ ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन का मतलब होता है कि व्यापारी लोग, उनके वो अकाउंट के अलग से वो काम करते थे। एंड लेट इनटू द नाइट, अब रात को वो देर से भी घर आते थे। ही सैट कॉपिंग द मैन्युस्क्रिप्ट एट द 500 अ पेज। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि हस्तलिपि, हाथ से लिखा हुआ। सो हाथ से लिखे हुए कुछ कागज के वो पर पेज 500 यानी 5 रुपए जैसा, बोलो कि 5 कॉइन जैसा रहता है, उस हिसाब से वो लेते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर, और ऐसी उनकी लाइफ जो है वो 10 साल तक चलती रहती है। एट द एंड ऑफ 10 ईयर दे हैड दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग। अब 10 साल के बाद उन्होंने सारा जो अपना कर्जा है वो अभी पेड कर दिया है। एट द एंड ऑफ 10th ईयर, यानी सोचो कि उनको जो उन्होंने कर्जा लिया था, जो नेकलेस वापस करने के लिए, तो उस कर्जे को मिटाने के लिए या कर्जे को परफेक्ट करने के लिए कम से कम उन्हें 10 साल लग जाते हैं। एंड वो 10 साल में जो जो लाइफ उनकी बताई गई है वो इस प्रकार से ही जीते हैं। इवन द इंटरेस्ट। मैडम लॉयल्टी लुक ओल्ड नाउ, ऑफ्टन शी brooded over the past. Now the condition change, that's why their personality also change, their glowing also change, सारी चीजें वो चेंज हो जाती है। एंड देन नाउ दे लुक द ओल्ड नाउ। अभी जैसे आपको पता है कि अगर किसी के ऊपर कुछ कर्जा रहता है, कुछ चीजें रहती है, तो हम बड़े निराश रहते हैं, हम उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। एंड इट विल बी चेंज अवर फेस, तो हमारा चेहरा भी उसमें बदल जाता है। मैडम लॉयल्टी ऑल्सो लुक ओल्ड नाउ, अभी वो थोड़ी बुरी दिखने लगी थी। ऑफ्टन शी ब्रूडेड ओवर द पास्ट, बिकॉज ब्रिड का मतलब होता है कि चिंता करना। वो हमेशा अपने पास्ट को लेके चिंता करती थी, और चिंता उसे किस बात की रहती थी? व्हाट हैपन इफ शी नॉट लॉस्ट द दैट नेकलेस। वो हमेशा सोचती रहती अगर क्या होता कि मैं उससे नेकलेस ना लेती और वो शायद मेरे हाथ से नाक होता, तो शायद हमें ऐसी लाइफ नहीं जीना पड़ता। सो व्हाट वुड हैव हैपन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट दैट नेकलेस, मतलब अगर वो नेकलेस उसके हाथ से खोता नहीं तो क्या होता? हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, हाउ फिकल। फिकल का मतलब होता है कि अनस्टेबल, कि लाइफ कितनी अनस्टेबल है। हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, कि लाइफ कितनी जल्दी चेंज हो जाती है। हाउ लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू बी रून और सेव। रून का मतलब होता है कि नष्ट होना, यानी छोटी सी हमारी नीडेड, जो हमारी आवश्यकता है, वो हमारी लाइफ को बचा भी सकती है, और रून का मतलब होता है कि नष्ट भी कर सकती है। तो इस बारे में वहां पे बताया गया कि छोटी सी चीज, जैसे मैडम मैथिल्डी को एक छोटी सी चीज चाहिए थी, नेकलेस। अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए वो नेकलेस वो ले भी लेती है। बट द लाइफ इज वेरी स्ट्रेंज, शी हैड लॉस्ट द नेकलेस एंड दिस थिंग हैपन टू हर, और वो सारी चीज उसके साथ होती है। देन पेज नंबर नेक्स्ट। वन संडे एज शी वॉज वॉकिंग in the campus, Elysis, suddenly she saw the Madam Forestier, still young, still beautiful, still charming. तो देखो यहाँ पे चित्र में हम देख रहे हैं कि अचानक से उन्हें ऑन संडे को मैडम फॉरेस्टियर, जिनके पास से उन्होंने नेकलेस लिया था मैडम मैथिल्डे ने, वो उन्हें दिख जाती है। शी नाउ लुकिंग, स्टिल शी नाउ लुकिंग द वेरी यंग, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी चार्मिंग। बट एंड द अदर हैंड मैडम लॉयल्सीज और मैडम मैथिल्डी लुकिंग वेरी ओल्ड, वेरी एज। ओके, तो एक संडे को जो उनकी फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर, वो उन्हें दिख जाती है। कहाँ पे? चाम्स इलिसिस, ये कोई रोड का नाम होगा वो। सडनली शी सॉ द मैडम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटीफुल एंड स्टिल चार्मिंग। अभी भी वो यंग थी, ब्यूटीफुल नजर आ रही थी, और उसके चेहरे पे चार्मिंग भी नजर आ रहा था। मैडम मैडम लॉयल्सी लेफ्ट इमोशनल। अब मैडम लॉयल्सी जो है मैथिल्डी, वो बहुत इमोशनल हो जाती है, सोचती है कि इसी से मैंने शायद नेकलेस लिया था और क्या मेरे साथ हुआ है। सो शी फेल्ट इमोशनल। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बात करना चाहिए? मैडम मैथिल्डी से सोचती है कि क्या मुझे उससे बात करना चाहिए? यस ऑफ कोर्स, हाँ करना चाहिए, क्यों नहीं? बिकॉज शी हैड पेड द ऑल डेट, क्योंकि उसने सारा कर्जा जो है वो पेड कर दिया था, उसका नेकलेस भी उसने उस वक्त उसको वापस कर दिया था। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। अभी उसको लगता है कि उसने अब उसे उसको सारी चीज बतानी चाहिए मैडम फॉर क्या हुआ, व्हाट हैपन टू हर।
and why not? She told each and everything to the Madam Forestier, and she went to her. Good morning, Jenny. अब वो उसके पास जाती है और धीरे से कहती है कि गुड मॉर्निंग जेनी। जैसे मैंने बताया कि उनका पूरा नाम था जेनी फॉरेस्टियर, उसे वो गुड मॉर्निंग कहती है। ऑन द अदर हैंड, द एस्टोनेट्स टू द एड्रेस सो फैमिलियर बाय दिस कॉमन वुमन डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर। शी स्टार्म। स्टार्म का मतलब होता है कि हकलाकर बोलना। अब दूसरे तरफ से जो मैडम फॉरेस्टियर रहती है वो उसे पहचान नहीं पाती है, बिकॉज जब उसको 10 साल पहले वो मिलती है लास्ट नेकलेस वापस करने के समय, सो मैथिल्डी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग एंड यंग। अब जब वो उन्हें रोड पे मिलती है, शी लुकिंग वेरी एज, वेरी पुअर, एंड दैट्स व्हाई मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट रिकॉग्नाइज द दिस वुमन। अब वो उसको पहचान नहीं पाती है। सो शी एस्टोनेट। एस्टोनेट का मतलब होता है कि दंग हो जाना। टू एड्रेस सो फैमिलियर बाय दिस कॉमन वुमन शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि पहचानना, वो उसे पहचान नहीं पाती है। शी स्टार्म। वो हकला कर बोलती है, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। लेकिन मैडम मैंने आपको पहचाना नहीं है, शायद तुमने गलती से मुझे आवाज दिया है। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। इस प्रकार से उससे बात करती है। नो, आई एम मैथिल्ड लॉयल्सिस। वो उसका अपना परिचय देती है कि मैं मैथिल्डी लॉयल्सिस हूँ। हर फ्रेम अटर अ क्राई। अब उसे देख के बड़ा बुरा लगता है और उसके रोने जैसी थोड़ी सी आवाज आती है कि उसका चेहरा देख के, उसका पूरस देख के, सो शी फीलिंग वेरी सैड एंड दैट्स व्हाई शी सेड दैट, ओ माय पुअर मैथिल्डी, हाउ यू हैव चेंज। वो कहती है कि मेरी दोस्त तुम कितना चेंज हो गई हो। यस, आई हैव हैड सम हार्ड टाइम सीन आई लॉस्ट सॉ यू। हाँ, मैंने बहुत कठिन समय गुजारा है जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें 10 साल पहले देखा था, उसके बाद से। एंड मेनी मिस्ट्रीज, यानी बहुत दुख भरी यातना भी मैंने देखे हैं। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। और ये सब किसके कारण हुआ? ये सारी चीजें तुम्हारे कारण हुआ, ऐसी मैथिल्डी फॉरेस्टियर को कहती है। मी, हाउ कैन दैट बी। अब मैडम जो है जेनी फॉरेस्टियर, वो कहती है मेरे वजह से। हाउ कैन दैट बी, ये कैसे हो सकता है? यू रिमेम्बर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वियर टू द मिनिस्ट्री पार्टी। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे जो डायमंड नेकलेस दिया था मिनिस्ट्री पार्टी में जाने के लिए, वहां पहनने के लिए? सो यू रिमेम्बर दैट, शी सेड। यस, वेल, हाँ मुझे याद है। सो वेल आई लव इट। वो उसे कहती है कि हाँ, आपने जो नेकलेस मुझे दिया था मैंने उसे खो दिया था। व्हाट यू मीन यू ब्रॉट इट बैक। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? लेकिन तुमने तो मुझे वो वापस कर दिया था। कि जैसे अपने को पता है कि मैडम मैथिल्डी उस ज्वेलरी शॉप से जैसे एक्चुअली लुकिंग वैसा ही नेकलेस उसको लेके आती है 36,000 फ्रांस में, और उसको वो रिटर्न कर देती है ताकि उसको कोई शक ना जाए। सो व्हाट डू यू मीन यू ब्रॉट इट बैक, शायद तुमने मुझे उसको वापस कर दिया था। आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट। मैंने तुम्हें वापस कर दिया था लेकिन वो नहीं था। इट इज अनदर एग्जैक्टली लाइक इट, उसके जैसे दिखने वाला दूसरा नेकलेस मैंने तुम्हें वापस किया था। एंड इट हैज टेकन अस 10 ईयर टू पे फॉर इट। और इसकी वजह से हमारे ऊपर जो कर्जा आया, और वो कर्जा चुकाने के लिए हमने कम से कम 10 साल लगे। इट वॉजंट इजी फॉर अस, और ये हमारे लिए कोई आसान चीज नहीं थी। वी हैड वेरी लिटल बट एटलीस्ट इट इज ओवर एंड आई एम वेरी ग्लैड। वी हैड वेरी लिटल का मतलब अभी ये खत्म हो चुका है, बिकॉज वी हैव पेड इट ऑल डेट। हमारे ऊपर जो कर्जा था हमने उसकी सारी ईएमआई बोलो कि जो कर्जा बोलो वो सारा पेड कर दिया गया है। एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी ग्लैड। और यहाँ ग्लैड का मतलब होता है कि हैप्पी, अभी मैं बहुत खुश हूँ। सो मैडम फॉरेस्टियर वॉज स्टून। अभी जो मैडम फॉरेस्टियर स्टून का मतलब होता है कि हैरान हो जाना, वो चकित हो जाती है कि ये सब कैसे हुआ। सो व्हाट डिड शी से? यू से दैट यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरे नेकलेस की जगह तुमने मुझे एक रियल डायमंड नेकलेस दिया है। यस, यू कुडंट नोटिस देन। हाँ दिया था, कि तुमने उसको नोटिस नहीं किया, कि तुमने उसको नहीं पहचाना। दे वेयर वेरी सिमिलियर। वो दोनों भी हार जो है नेकलेस है दिखने में एक समान थे, एक जैसी थे। दे लुकिंग वेरी सिमिलियर। एंड शी स्माइल।
with proud and innocent pleasure. अब जो है जेनी फॉरेस्टियर मैडम मैथल्डी के ऊपर थोड़ा प्राउड फील भी करती है, गर्व फील करती है, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत करके वो नेकलेस भी वापस किया था। एंड इनोसेंट प्लेजर, और वो थोड़ा उसको इनोसेंट यानी थोड़ा उसको मासूम सा, उसको थोड़ा हंसी भी आती है, और वो कहती है मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव टूक हिज बोथ हैंड। अभी उसका वो दोनों हाथ पकड़ लेती है और रिप्लाई क्या करती है, ओ माय पुअर मैथल्डी, माइन वॉज एन इमिटेशन, इस वर्थ इट वॉज वर्थ 500 फ्रांस एट मोस्ट। और उसे कहते हैं कि मेरे दोस्त, वो जो हार तुमने मुझसे तुमने लिया था वो इमिटेशन था। इमिटेशन का मतलब होता है कि नकली। वो हार जो था एक नकली था, और तुमने मुझे उसके बजाय जो ओरिजिनल हार दिया वो बहुत महंगा है। एंड जो मेरे पास से हार तुम लेके गई थी, इट वर्थ 500 फ्रांस एट मोस्ट, और जो हार तुम मुझसे लेके गई थी उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 500 फ्रांस, यानी सिर्फ 500 रुपए में बोलो, हम इंडियन इसमें बोले तो फ्रांस इसमें बोलते हैं 500 फ्रांस, वो सिर्फ इतने रुपए का था, और तुमने मुझे वापस किया वो बहुत ही महंगा और ओरिजिनल था। सो ये लास्ट में रिप्लाई मैडम फॉरेस्टर देती है। तो इट वॉज द स्टोरी एडोप्टेड फ्रॉम द नेकलेस बाय गेदी मैन्युफैक्चरेंट, और ये जो स्टोरी है गेदी मैन्युफैक्चरेंट ने लिखी है। और व्हाट डिड वी नोटिस फ्रॉम दैट ऑल स्टोरी, कि हम सारे स्टोरी से क्या सीखते हैं, कि इट इज अ स्टोरी ऑफ वेरी अनहैप्पी लेडी, अनसेटिस्फाइड लेडी। सो वी शुड नॉट बी अनसेटिस्फाइड फ्रॉम द ईच एंड एवरीथिंग, कि हमें सारी चीज से अगर हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं तो हम वो चीज पाने के लिए बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। द सेम थिंग इज ऑल्सो हैपन विद द मैडम मैथल्डी। और वो भी क्या करती है, एक छोटा सा नेकलेस अपने दोस्त से वो लेती है, और जिसके कारण उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एंड एज शी वॉज लिविंग द वेरी कॉमन लाइफ ऑलरेडी, शी बिलोंग टू वेरी कॉमन फैमिली, एंड आफ्टर दैट कंडीशन शी टर्न इनटू द वेरी पुअर फैमिली। और उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत गरीब फैमिली में चली जाती है, बहुत सारा कर्जा उसके ऊपर हो जाता है। शी रिप्लेस हर मेड, अपनी नौकरानी को उसको निकालना पड़ता है। शी हैड टू डू ईच एंड एवरी hateful things, doing the hard working and carry the garbage. She do the each and every possible things to pay their debt. And at last, when they pay their debt, जब वो अपना सारा कर्जा पे कर देती है, और जब वो मैडम फॉरेस्टियर से मिलती है, तो उसे पता चलता है कि जो डायमंड उसने लिया था वो इमिटेशन था, एक नकली था, और उसके बदले वो 36,000 फ्रांस का वो रियल डायमंड उसको वापस कर देती है। सो इट इज द स्टोरी ऑफ मैडम मैथल्डी, और इससे हमें बहुत सारी सीख भी मिलती है। सो आफ्टर दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू सी दिस मार्जिंग क्वेश्चन। तो आपके इस पेज में जो मार्जिंग क्वेश्चन होंगे हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सो पहला हमारा सवाल है, व्हाट वाज द एग्रीमेंट विद द ज्वेलर, डू यू थिंक इट वाज फेयर, यानी ज्वेलर के साथ कौन सा एग्रीमेंट होता है और तुम्हें क्या लगता है कि वो एग्रीमेंट सही था, वो फेयर था। तो देखो, जिन बच्चों को मार्जिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर लिखना है वो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो व्हाट वाज द एग्रीमेंट विद द ज्वेलर, डू यू थिंक इट वाज फेयर, उन्होंने कौन सा एग्रीमेंट बनाया था और तुम्हें क्या लगता है कि वो एग्रीमेंट फेयर था या सही था। आंसर, मैथल्डी एंड हर हस्बैंड बेग द ज्वेलर नॉट टू सेल द नेकलेस फॉर 3 days। उनसे वो कौन सा एग्रीमेंट करते हैं कि वो ज्वेलर से बेग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि नॉट टू सेल नेकलेस फॉर 3 days, कम से कम 3 दिन तक वो नेकलेस को ना बेचे। द ज्वेलर एग्री दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर द 34,000 फ्रांस इफ द अदर नेकलेस वाज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ फरवरी। तो फरवरी के एंड तक अगर रियल नेकलेस उनको मिल जाता है तो उनका एग्रीमेंट ऐसा रहता है कि वो उस नेकलेस को ज्वेलर को वापस कर देंगे कितने में, 34,000 फ्रांस में। सो डू यू थिंक इट वॉज फेयर, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है। तो यहाँ पे आंसर लिखा है मैंने, एक्चुअली इट वॉज फेयर, यस आई थिंक इट वॉज फेयर। यू कैन राइट ऑल्सो दिस वे, यस आई थिंक इट वॉज फेयर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड सवाल है, हु इज मैडम लॉयल्सिस, मैडम लॉयल्सिस कौन थी। मैडम लॉयल्सिस इज मैडम
मैडम मैथिल्डी इज अ मैडम लॉयल्सिस। जो मैडम मैथिल्डी थी वही मैडम लॉयल्सिस है। ओके, सेकंड। थर्ड, व्हाई डज मैडम फॉरेस्टियर स्पीक कोल्डली टू मैथिल्डी। यानी मैडम फॉरेस्टियर जो है मैडम मैथिल्डी से एकदम धीरे से कोल्डली से बात क्यों करती है? बिकॉज आंसर, मैडम फॉरेस्टियर स्पोक कोल्डली बिकॉज शी वॉज गेटिंग हर नेकलेस बैक आफ्टर सो मेनी डेज एंड शी माइट हैव नीडेड इट, शी शुड रिटर्न इट इमीडिएटली। और इसलिए वो इसको धीरे से बात करती है क्योंकि शी गेटिंग द नेकलेस बैक आफ्टर सो मेनी डेज, उसको बहुत दिनों के बाद वो नेकलेस वापस मिलता है। एंड शी माइट हैव नीडेड इट, शायद उसको उसको जरूरत पड़ सकती थी। एंड शी शुड रिटर्न इट इमीडिएटली, और शायद उसे मैडम मैथिल्डी को नेकलेस जल्दी वापस करना था। वही बात उसको बताने के लिए वो उससे धीरे से कोल्डली से उससे बात करती है। नंबर 4, व्हाट इज मीन बाय द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर। यानी जो हॉरिबल लाइफ, भयानक लाइफ गरीब लोगों की लाइफ वो जीती है, उसका मतलब क्या है? द पुअर कैन नॉट अफोर्ड लग्जरियस ऑफ लाइफ लाइक द रिच। यानी यहाँ पे सवाल में पूछा है कि बहुत गरीब लाइफ जीना, हॉरिबल लाइफ जीना, इसका मतलब क्या है? तो उसका आंसर इस प्रकार से है, द पुअर कैन नॉट अफोर्ड लग्जरियस लाइफ लाइक द रिच। यानी गरीब लोग जो बहुत ज्यादा गरीब रहते हैं वो रिच लोग जैसे लग्जरियस लाइफ को नहीं जी पाते हैं। एंड had to face many difficulty due to very little money or no money at all। और उनको बहुत सारे डिफिकल्टी को फेस करना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते, या नो मनी एट ऑल, या उनके पास कुछ भी पैसे नहीं रहते। इवन द लॉयल्टी हैड टू फेस मेनी हार्डशिप बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। और इवन मैडम लॉयल्टी को बहुत सारे हार्ड कंडीशन को फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीब की वजह से। दे डिसमिस देयर मेड, उनको क्या करना पड़ा? दे डिसमिस देयर मेड, उनको अपने नौकरानी को निकलना पड़ा। एंड चेंज देयर लॉजिंग, वो अपने घर को भी वहां से जो बड़े घर में रहते थे किराए से, उसको भी वो चेंज कर लेते हैं। एंड चेंज देयर लॉजिंग। मैथिल्डी हैड टू डू ऑल द हाउस वर्क बाय योरसेल्फ herself while her husband had to work extra so that they can pay some loan। यानी छोटा सा कर्जा चुकाने के लिए, कर्जा का हफ्ता भरने के लिए मैडम मैथिल्डी हैड टू डू द ऑल हाउस वर्क, उसको सारा घर का काम करना पड़ता है जैसे कि हमने देखा था। और उसके हस्बैंड को एक्स्ट्रा काम भी करने पड़ते हैं बहुत छोटे छोटे पैसों के लिए। सो ये सारी जो हॉरिबल लाइफ है उनको जीना पड़ता है ऑफ द वेरी पुअर। ओके, नंबर 5 एंड लास्ट, हु डू यू थिंक वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैथिल्डी मिस्ट्री? वॉज इट हर फ्रेंड, शी herself, हर हस्बैंड और द सर्कमस्टेंसेस? देखो बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे पूछा गया है कि मैथिल्डी की लाइफ में जो दुख भरी कहानी आती है, जो उसकी कंडीशन हो जाती है, तो हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या उसकी फ्रेंड थी जिन्होंने उन्हें हार दिया था? वॉज इट हर फ्रेंड, मतलब वो बात कर रहे हैं कि जेनी फॉरेस्टियर की, क्या उसकी वो दोस्त थी जिसके कारण ये सारी कंडीशन उनको झेलना पड़ा? और शी herself, क्या वो खुद इसके कंडीशन के लिए जिम्मेदार थी? क्या उसका हस्बैंड और हर हस्बैंड और द सर्कमस्टेंसेस, क्या जैसे वो होता है सर्कमस्टेंसेस यानी हमारे आसपास जैसे चीजें घटती है वो सारा जिम्मेदार था कि ये सारे जिम्मेदार कौन थे? सो आई थिंक मैथिल्डी वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर मिस्ट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैडम मैथिल्डी अपने जो सारी कंडीशन उनके साथ होती है, दे चेंज देयर लिविंग स्टाइल, चेंज देयर लॉजिंग, लिविंग द वेरी मिजरेबल लाइफ, डूइंग द एक्स्ट्रा वर्क। ओके, तो इट वाज द ओनली मैथिल्डी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर कंडीशन। सो सिर्फ मैडम मैथिल्डी ही उस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। आई थिंक मैथिल्डी वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर मिस्ट्री। शी शुड हैव बीन सेटिस्फाइड with what she had and not borrow the necklace from her friend। तो यहाँ पे आंसर में बताया गया है कि she should be satisfied what she had, कि हमारे पास जो रहता है या मैडम मैथिल्डी के पास जो था उसमें उसको सेटिस्फाइड रहना था। एंड she not borrow the necklace from her friend, शायद उसको अपने दोस्त से वो नेकलेस बोरो नहीं करना था, उसना या उधार नहीं लेना था। The loss of the necklace led to her misery।
यानी जो नेकलेस खो जाता है उसके लिए उसको ये लाइफ मिस्री यानी दुख भरी लाइफ उसको जीना पड़ता है. ऑफ कोर्स द सर्कमस्टेंसेस वेयर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. वो खुद तो इसके लिए जिम्मेदार है, और जो सर्कमस्टेंसेस है कि हम जैसे वो पार्टी में जाती है, वहां पे बहुत सारे ये होते हैं, और वो नेकलेस जानबूझ के तो वो नहीं करती है, लेकिन वो नेकलेस उसके हाथ से वो खो जाता है. सो सर्कमस्टेंसेस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ओके, तो ये है हमारे क्वेश्चन आंसर और ये थी हमारी स्टोरी. सो ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल एंड अंडरस्टैंड आल्सो मार्किंग क्वेश्चन. अगर आपका कोई सवाल है, कुछ आपको पूछना है, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क इट वेरी क्लियरली. एनीवन? सर बच्चों का माइक अनम्यूट कर दो. हेलो सर. हाँ बेटा. गुड मॉर्निंग सर. वो सेकंड वाले आंसर का एक बार दिखाइए ना, उसका स्क्रीनशॉट लेना था. ये बेटा फर्स्ट एंड सेकंड. यस यस. ओके ओके, थैंक यू सर. ओके, और जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है 3rd 4 5, उसका भी वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, किसी को कुछ पूछना है? लेसन आपको समझ में आया पार्ट सेकंड? यस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर सेट इज हाँ सर. हाँ पूछिए. हेलो सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बेटा. बोलो. 4 क्वेश्चन बताइए. व्हाट इज द मीट बाय द हॉरिबल लाइफ ऑन ऑफ द वेरी पुअर? ओके ओके, सो इसको हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं. व्हाट इज मीन्ड, यानी व्हाट इज मीन्ड, इसका मीनिंग क्या है कि बाय द हॉरिबल लाइफ ऑफ वेरी पुअर, यानी बहुत भयंकर गरीबों की लाइफ जीना. इसका मतलब क्या है वो हमें पूछ रहे हैं. सो ये रिलेटेड क्वेश्चन है, हमारे लेसन से ही है, लेकिन थोड़ा हटके पूछा गया है कि वेरी पुअर लाइफ जीना, हॉरिबल लाइफ जीना, इसका मतलब क्या होता है. तो आंसर हमें दिया है, द पुअर कैन नॉट अफोर्ड लग्जरियस ऑफ लाइफ लाइक द रिच. ओके, तो जो पुअर पर्सन होते हैं, जैसे हमें पता ही है कि बहुत सारे बहुत गरीब लोग रहते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड लग्जरियस लाइफ, यानी जो लग्जरियस लाइफ रहती है उसके जैसा वो लाइफ नहीं जी पाते, उनके जैसा वो इफोर्ट नहीं कर पाते हैं, लाइक द रिच पीपल, अमीर लोगों के जैसा. एंड दे हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टी ड्यू टू वेरी लिटिल मनी. उनके पास बहुत कम पैसे रहते हैं. जो लोग देखो अभी कोरोना का कल की वजह से बहुत सारे लोगों के पास पैसा कम रहता था और बहुत सारी कंडीशन उनको झेलनी पड़ी. हम इसका भी कुछ यहाँ से ले सकते हैं कि दे हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टी ड्यू टू वेरी लिटिल मनी और नो मनी एट ऑल. एक तो कुछ भी पैसा नहीं रहता है या बहुत कम पैसा रहता है, तो उसकी वजह से भी हम लाइफ में हमें बहुत सारी डिफिकल्टी को झेलना पड़ता है. ओके, देन इवन द लॉयल्टीज. अब देखो हॉरिबल लाइफ का जो ऊपर पूछा गया सवाल, व्हाट इज मीन बाय द हॉरिबल लाइफ ऑफ वेरी पुअर, इसको ये 2 लाइन में एक्सप्लेन किया गया है. अभी कुछ लेसन से जो है मैथल्डी के लाइफ से भी कुछ यहाँ पे 2-4 लाइन बताई गई है. इवन लॉयल्टीज हैड टू फेस मेनी हार्डशिप बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी. तो गरीबी के कारण मैडम लॉयल्टीज को भी बहुत सारे कंडीशन को फेस करना पड़ता है. हार्डशिप का मतलब होता है कि कठिनाई को फेस करना पड़ता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. और कौन सी कंडीशन को उन्हें फेस करना पड़ता है ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. दे डिसमिस देयर मेड, वो अपने नौकरानी को डिसमिस करते हैं. चेंज देयर लॉजिंग, उनको अपने जो घर है वो भी छोड़ना पड़ता है. लॉजिंग का मतलब होता है जो रहने का जो घर है वो भी उन्हें चेंज करना पड़ता है. मैटेल्डी हैड टू डू ऑल हाउस वर्क बाय हरसेल्फ, और जो मैटेल्डी जैसे हम जानते हैं जो क्लर्क उन्होंने शादी की थी उसके बाद वो सारा काम वो मेड से करती थी. एंड वो ऐसा दिखाती थी कि बहुत रिच फैमिली जैसा रहती थी और बहुत कंडीशन अपना बेहतर दिखाती थी. बट आफ्टर लॉसिंग देयर नेकलेस मैथेल्डी हैड टू डू ऑल हाउस वर्क बाय हरसेल्फ, तो सारा काम उसे अपना घर का खुद करना पड़ता था. वाइल हर हस्बैंड हैड टू डू एक्स्ट्रा सो दैट दे कैन पे सम लोन्स, और उनके जो हस्बैंड है उनको भी बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत थी बहुत सारे जो कर्जा है वो चुकता करने के लिए. ओके थैंक यू सर. ओके, एनीवन एल्स? यस बेटा.
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर सेटिस्फाइड मीनिंग क्या है? संतुष्ट हो जाना, सेटिस्फाइड। हम किसी भी चीज को लेकर देखो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमारे पास ठीक है, इतना पैसा है या इतना कुछ है, इट्स ओके, इट इज सेटिस्फाई फॉर अस, वी डोंट नीड एक्स्ट्रा, हमें ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? ओके, ठीक है। तो बच्चों आज हमने सीखा है द नेकलेस, टॉपिक 1.5 का जो है पार्ट सेकंड, पेज नंबर 28 से, जो लिखा था गाय दी मैन्यू पेशेंट ने। तो ये सारी नेकलेस की कहानी एक लेडीज की कहानी है, मैडम मैथल्ड की कहानी है कि कैसे एक नेकलेस खोने के उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं और इंसान के पास जो है उससे हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, वो डोंट नीड टू एक्स्ट्रा। अगर हम ज्यादा कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो जाती है और जिसका हमें बहुत सारा जो है वर्क करना पड़ता है और बहुत सारी कंडीशन को हमें फेस भी करना पड़ता है। सो इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ मॉरल स्टोरी फॉर us. Okay. So myself Sandeep sir from Mahim Municipal Secondary School, Mahim. Okay. Thank you.